So, good evening, everyone. Are you done with your attendance? Everybody, more people are joining. Let's join. So, let us start with today's lecture. This is our English speaking classes session 48. Okay, and in today's class, we have accommodated our other students first. So, let's go for first today's topics. What we are going to learn today. Okay. Today we are going to take tense revision. Okay, tenses we have learned. Who will tell me what are the many types of tenses? Type in the chat box fast. You have to write the main types of tenses. Correct. There are three main types of tenses, that is past, present, and future. Okay, and they have subtypes. So who will tell me that subtypes? Yes, we are done with our main types. Now, what are the subtypes? Like your past tense, present tense, future tense, each and every one. There are simple, like simple present tense, simple past tense, simple future tense, and we have continuous past tense, present tense, continuous future tense, simple and continuous. Again, we have perfect, imperfect, that is perfect continuous. So today we are going to take part of it. We will have some pronouns. Okay, pronouns के बारे में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. Have if we get time, we will have some questions and conversation. Right? My voice is low. Yeah. Is it clear now, everyone? Again, it is low. Yeah. Wait a minute. I'll change the unit. Am I audible clearly now? Please check. Is it loud and clear? Great, great, great. Thank you. Thank you. So we'll go with our tenses revision first. Okay. See what I have written here. Tense, types, formula, and sentences. So as you had learned it before, what we are going to do, we are going to just revise the things. Okay. हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आपने जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे. ओके. सो फर्स्ट यहाँ पे मैंने क्या लिया है देखिए. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ओनली सिंपल एंड कंटिन्यूअस टेंस. ओके. सो हियर यहाँ पे पहला जो है क्या लिखा हुआ है, मैंने एक टेबल बनाया है. ओके. टेबल में क्या लिखा है देखिए, वर्ब टेंस, उसका फॉर्मूला और उसके एग्जाम्पल्स. फर्स्ट टेंस इज सिंपल प्रेजेंट. सो somebody from you have to read it for me. Who will read? Raise the hand. दीपिका. यस दीपिका, आपका माइक शुरू कीजिए. हेलो मैम. या व्हाट यू हैव टू लर्न, व्हाट यू हैव टू रीड. आपको वर्ब का टेंस पढ़ना है, देन उसका फॉर्मूला पढ़ना है और उसका एग्जांपल पढ़ना है. ओके. यस, प्लीज स्टार्ट.
Present simple tense. Formula subject plus verb V1 plus S or ES. Example, I play music nearly every day. Very good. Thank you so much. Please switch off your mic. Now see, I will explain it one by one. Okay, जैसे आपका ये है प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस यू कैन से. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मीन्स वर्ड कि आप आपका जो सेंटेन्स आहे वो कैसे लिखते हो. ओके, आपण आपला सेंटेन्स कसं लिहायचं त्याच्यासाठी एक फॉर्म्युला दिलेला आहे. ओके, तो फॉर्म्युला काय आहे? सब्जेक्ट. अभी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द डूअर, मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. ओके, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है जो काम करने वाला है इस सेंटेंस में, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट. सेकेंड है यहाँ पे वर्ब. व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ एक्शन वर्ड. ओके, जैसे गो, कम, प्ले, दिस एवरीथिंग इज कॉल्ड एज एक्शन. आप जहाँ पे जो भी एक्शन करते हो उस वर्ड को हम लोग बोलेंगे वर्ब. यहाँ पे एक लिखा है V1. नाउ व्हाट इज V1? V1 इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब. ओके, ये हमारा, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि ये सब कुछ हो चुका है आपका, सिर्फ यहाँ पे हम लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं. ओके, ये ऐसा देखिए, इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब. जैसे सपोज वेंट लिखा है तो वेंट ये क्या हुआ? गो का सेकेंड फॉर्म हुआ. ओके, इसका फर्स्ट फॉर्म है गो और थर्ड फॉर्म है गॉन. करेक्ट. तो इसी तरीके से हमें प्रेजेंट टेंस में हमेशा क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, फिर यहाँ पे एस और ईएस लिखा है, इसके बारे में किसी को कुछ पता है? एस और ईएस कब यूज करते हैं? कैन एनीबडी टेल? You can write your name in the chat box if you want to explain this. When she, he, it is a subject. Yes, कादम्बरी ने अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर भी लिख दिया. ओके, तो he, she, it जब हम लिखते हैं, and right here, he and it. तो he, she और it, इनके साथ हम लोग ये एस और ईएस जो है वो आपके सिंपल वर्ब या मेन वर्ब जो है आपका के साथ लिखते हैं. लेकिन फिर ये अगर ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ही, शी, इट. दूसरा कंडीशन क्या है कि ऐसे वर्ब्स जिनके एंड में वो आता है, एस आता है, एस आता है, सी आता है. ओके, ऐसे वर्ब्स के साथ हम लोग हमेशा एस या जो ईएस है ये जोड़ देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से गो, ओके, तो आई गो, लेकिन ही, शी, इट के साथ क्या लिखेंगे? गोज. GO, क्योंकि एंड वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे? ओ. एंड का लेटर ओ है तो गोज. ओके, आई, यू, वी, दे के साथ लिखेंगे गो और ही, शी, इट के साथ लिखेंगे गोज. ओके, देन यहाँ का जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं. दिस, इस एग्जाम्पल में लिखा है आई प्ले म्यूजिक नियरली एवरी डे. क्या लिखा है कि मैं हर दिन म्यूजिक, मतलब म्यूजिक का अभ्यास करता हूँ या उसको प्ले म्यूजिक बोलते हैं. ओके, संगीत का अभ्यास करता हूँ. तो इससे आपको क्या पता चलता है? इसमें एवरीडे क्यों लिखा है?
बिकॉज सिंपल प्रेजेंट जो है, सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ पे होता है कि हम लोग जब डेली कोई चीज करते हैं, ठीक है, या कुछ आदतें होती है उनके बारे में अगर आपको बात करना है तो वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे सूरज डेली उगता है, सन राइजेस एवरी डे एंड सन सेट्स एवरी डे। तो ये जो आप सेंटेंस लिखोगे वो आएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट की कुछ सेंटेंसेस आप बताना चाहते हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। सिंपल प्रेजेंट, one fast, because we have to cover all these tenses today. You have to write the sentence in simple present tense. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है I play music nearly every day. अगर I के साथ मैंने play लिखा है तो he, she और it के साथ क्या लिखेंगे? He plays music nearly every day. She plays music nearly every day. It plays music nearly every day. Okay? Yes, दीपिका ने लिख दिया है। She goes Excuse me, to, madam. बोला। Excuse me, madam. Your voice is breaking. Yes, let me check. Other students, please let me know, is my voice breaking? Everybody please write. Madam, can I left because this is my problem? Maybe this is my Yes, yes, problem. yes, 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 yes. Please leave the Sorry, class, madam, join again. interrupted you. No, no problem. Please leave and join again, okay? Yes, thank you everyone. Yes, okay, so I was reading the sentences. Uh, yes, Deepika says, she goes to school every day. Very good, Deepika. Anuj said, I play cricket every day. Good. Kadambari, he writes a letter. Very good, everyone. Okay. So let's go to the next. That is past simple. अभी past simple में क्या होता है? Past simple मतलब आपका जो present है, present simple का जो formula है, उसमें सिर्फ एक change होगा. That is आपको जो verb है V2. Okay. V2 is what? Now it is the second form of the given verb. जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि गो इज द फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकेंड फॉर्म हुआ वेंट और उसका थर्ड फॉर्म हुआ गॉन। ओके, मतलब ये गो जो लिखा है वो प्रेजेंट है, देन वेंट क्या है? वेंट इज उसका पास्ट है और गॉन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो उसको बोला जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये ध्यान में रखना है और उसी तरीके से आपको चलना है। जैसे यहाँ पे देखिए प्ले यूज किया है फर्स्ट सेंटेंस में, तो एक प्ले का ही सेंटेंस आपको सभी एग्जांपल्स में सभी टाइप्स में दिखेगा, क्योंकि कैसे चेंज होता है वो बताने के लिए। ठीक है, तो आता इथे बघा पास्ट सिंपल मध्ये काय आहे फॉर्म्युला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, यस्टरडे आई प्लेड एन एंटायर एल्बम। क्या है ये? प्लेड जो है वो क्या हुआ? प्ले का सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस ऑफ प्ले इज प्लेड, ईडी लगा है देखिए। तो यहाँ पे यही ऊपर वाला जो सेंटेंस है आपका, आई प्ले म्यूजिक नियरली एवरी डे, उसको ही अभी उन्होंने कन्वर्ट किया है कि यस्टरडे, उससे रिलेटेड ही आगे वाला सेंटेंस है देखिए। यस्टरडे आई प्लेड एन एंटायर एल्बम, उसने क्या बोला था कि मैं हर रोज क्या करता हूँ? म्यूजिक प्ले करता हूँ। और कल मैंने क्या किया कि पूरा एल्बम मैंने प्ले कर दिया। ओके, तो
कल क्या हुआ, नियर पास्ट में क्या हुआ, वो अगर आपको बताना है तो यू यूज सिंपल पास्ट टेंस, ध्यान में रखना है। ओके, और इसका जो भी आपका एक्शन वर्ड है उसका सिर्फ आपको क्या यूज करना है, पास्ट टेंस यूज करना है। ओके, बाकी उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल्स लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, वेरी गुड सोहन। टू बॉयज प्लेड विथ अ बॉल। बाकी लोग लिखिए। She ran away from the temple. Very good, Kadambari. Deepika says she went to the school. Very good. देखिए, सोहम ने प्ले का प्लेड यूज किया, कादम्बरी ने रन का रैन यूज किया, दीपिका ने गो का वेंट यूज किया, निधि से she wrote the paper yesterday. निधि वी से एग्जाम, ओके, she wrote the exam yesterday. So राइट का रोट हुआ। वेरी गुड। सब लोग अपना मैसेज बॉक्स चेक करते रहिए क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। ओके, Samant played the song yesterday. Okay, very good. Another. Okay, great. I completed my work yesterday. Very nice, Aditi. Now we'll go for the next type, future simple. मैं थोड़ा फास्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपका पिछली बार हुआ है और अगर नहीं भी हुआ है तो इस बार तो मैडम कंटिन्यू करेंगे ही, ग्रामर की मैडम, है ना। तो या so let's go with the next one, that is your future simple, मतलब simple future tense। अभी simple future tense में देखिए क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला में will और shall, और वर्ब जो है उसका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही है। okay? तभी विल और शैल जो है जनरली आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज करेंगे एंड द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल यूज विल। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे अभी मैंने बोला आई के साथ शैल यूज करना है, फिर यहाँ पे मैंने विल क्यों लिखा है। तो यहाँ पे जो स्पोकन इंग्लिश होता है, स्पोकन इंग्लिश में जनरली विल का ही यूज होता है फ्यूचर के लिए। ओके, आप जब रिटर्न इंग्लिश मतलब आप राइटिंग स्किल्स अगर कर रहे हो आपके, तो रिटर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ आपको करेक्ट ग्रामर के लिए शैल लिखना है, ये ध्यान में रखना है। ओके, सो अभी देखिए ये एग्जांपल कैसे टर्न आउट हुआ है। आई विल प्ले एज मेनी एल्बम्स एज आई कैन दिस मंथ, मतलब हिंदी में बोलेंगे कि इस महीने में मुझसे जितने हो सके उतने एल्बम मैं प्ले करूंगा या करूंगी। तो ये फ्यूचर के बारे में, नियर फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मी हे करेन, मी असं करेन, माझ्यासोबत असं होईल, हे जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा आपण सिंपल फ्यूचर टेन्स वापरतो। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि मैं डेली, पहले सेंटेंस से फिर से स्टार्ट करते हैं, मैं डेली म्यूजिक प्ले करता हूँ। फिर बोला यस्टरडे मैंने, कल मैंने एक एल्बम पूरा किया। अभी बोला है कि पूरे महीने में मैं जितने हो सके उतने एल्बम कंप्लीट करूंगा। तो आज एक चीज डेली हो रही है, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल। कल मतलब नियर पास्ट में मैंने कुछ चीज की तो उसके लिए पास्ट सिंपल, और नियर फ्यूचर में मैं कुछ करने वाली हूँ या करने वाला हूँ तो सिंपल फ्यूचर टेन्स। समझ में आया आपको? सगळ्यांना समजलंय का हे? ग्रेट। मग आता तुम्ही मला सिंपल फ्यूचरचं एखादं सेंटेन्स लिहून दाखवा। आय विल, कादंबरी आय विल हार्ड फॉर यू इज व्हॉट, काहीतरी मिसिंग आहे बघ। इट विल, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, इट विल हार्ड फॉर यू, तर इट विल, इटच्या इथे ना इट विल बी हार्ड फॉर यू असं वापरायला लागेल तुला।
कारण तुला आता इथे काय वापरायचं आहे विसरू नका. हार्ड हे वर्ब नाहीये ना, आपल्याला काय वापरायचंय, सोबत वर्ब वापरायचंय. वी विल, धीरज, वर्बचा फर्स्ट फॉर्मच आहे. आयएनजी वापरलाय का बघ. वी विल गो टू स्कूल टुमॉरो लिहायचा, वी विल गोइंग नाही लिहायचं. ओके, व्हेरी गुड. आता सोहमने काय केलंय बघा, सोहमने तेच वाक्य त्याने आता क्वेश्चन मध्ये टाकलं. व्हेरी गुड. विल यू कम टू द पार्टी, व्हेरी गुड सोहम. देन दीपिका से शी विल गो टू द स्कूल. ओके, गुड दीपिका. देन निधि says I will play, नाही sorry, I will come to class tomorrow. व्हेरी गुड. अच्छा, त्याने फक्त पार्टीचं स्कूल केलं. विल यू कम टू द स्कूल. गुड. इथे पण तू टुमारो टाकू शकतो. विल यू कम टू द स्कूल टुमारो. ओके. आय शॅल कीप द सिक्रेट. व्हेरी गुड आदिती. देन अनघा सेज आय विल, स्किल झालं आणि अनघा आय विल गो टू स्कूल टुमारो. ओके, सगळ्यांची शाळा सुरू झाली त्यामुळे सगळेच बहुतेक उद्या शाळेत जाणार आहेत. देन धनश्री सेज आय विल गो टू मुंबई टुमारो. ओके, ग्रेट, गुड. म्हणजे तुम्हाला आयडिया आली की हे सिंपल पार्ट जो आहे प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स कसा वापरायचा. क्लिअर. सो शॅल वी मूव्ह टू कंटिन्युअस पार्ट ऑफ इट. धीरज, तुझं हे वाक्य बरोबर आहे पण परत फॉर्म्युलाला धरून नाहीये. ओके, इट इज द डिफरंट वे टू से दॅट सेंटेन्स. पार्थ, येस, आय विल कम टू गार्डन टुमॉरो. ग्रेट. आता आपण काय करूया, नेक्स्ट त्याला जाऊया टाईपला. कंटिन्यू. क्या होता है प्रेजेंट का, यहाँ पे जैसे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है, हमने यहाँ पे क्या किया, इन और क्या और आर, ये हेल्पिंग वर्ब से आपके ये कैसे use होते हैं? इसको डिलीट कर देते हैं. एम किसके साथ यूज होता है, कौन बताएगा. अगेन माय वॉइस इज लो. I don't find. Yes, I will join with another unit. Please wait. Let me join. आता आवाज येतोय का सांगा. व्हॉट नाव क्लिअर. मी स्टार्टच नाही केलं तरी क्लिअर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, बस बस. आणि जर तुम्हाला असं जाणवलं की आवाज परत कमी झालाय तर प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये सांगा मला. फाईन. सो लेट्स गो विथ द नेक्स्ट टाईप. परत एकदा सांगते मी. एम, इज अँड आर. ओके, एम कोणाचं पद वापरतो आपण वेन वी से आपले जे काही सब्जेक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण आय लिहितो. येस कादंबरी, करेक्ट. सो आय या सब्जेक्ट सोबत आपण काय वापरतो, वी यूज एम. ओके, देन वेन वी से ही, शी और इट, ही, शी, इट सोबत आपण वापरतो इज. ओके, अँड काय राहिलं मग आता याच्यामध्ये, वी आणि दे. वी आणि दे सोबत आपण वापरतो आर. आई के साथ एम यूज करते हैं, ही, शी, इट के साथ इज यूज करते हैं
और वी और दे के साथ आर यूज करते हैं। ये तीनों क्या है? एम इज आर। इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, मतलब मेन वर्ब को सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए वो हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है देखिए। यहाँ पे लिखा है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के बाद आपको एम इज आर यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम यूज करेंगे, ही शी इट है तो इज यूज करेंगे, और वी या दे है तो आर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ब के साथ अभी देखिए यहाँ पे आईएनजी जोड़ना है। तो धीरज ने जो पिछले सेंटेंस में मिस्टेक किया था वो ये है कि फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में नहीं करना है उसको। कंटिन्यूअस अगर रहेगा तो कंटिन्यूअस में आपको हर जगह पे आईएनजी यूज करना पड़ता है, ध्यान में रखना है। ओके, मग आता इथे बघा काय सेंटेन्स बनवलाय। आय आय यूज किया है इसलिए यहाँ पे एम लिखा है, और जो आपका मेन वर्ब है प्ले, उसके साथ क्या जोड़ा है? आईएनजी। तो ये हो गया प्लेइंग। आई एम प्लेइंग द ऑफस्प्रिंग राइट नाउ। ये एल्बम का नाम है, म्यूजिक एल्बम का। ओके, तो यहाँ पे मेन क्या है? ये राइट नाउ लिखा है, मतलब क्या कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। जैसे आप लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम टीचिंग राइट नाउ। और आप अपने बारे में क्या बोलोगे? आई एम लर्निंग टेन्सेस राइट नाउ। ओके, आया समझ में? सगळ्यांना समजलंय का? चॅटबॉक्स मध्ये लिहा. Yes, good. Thank you. So, can we have present continuous tense के कुछ sentences? Type in the chat box. Yes, they are going to garden. Very good, Kadambari. I am writing a letter now. Yes, Anaga, good. Deepika says, I am reading the book. Past says, I am playing the game now. Very good. So, Parth, are you really playing the game now or you are concentrating on the class? Oh, good. Then Aditi says she is cooking the sweets. Okay. Nidhi says I am going to lunch. Nahi Nidhi, for lunch. Okay. Then Sneha is Dhanashri. Dhanashri says teacher is teaching in the class. Okay. I am eating fruits. Very good, Soham. Sakshi says Sakshi, he is good player is not correct according to your टाइप ऑफ टेन्स. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रेझेंट कंटिन्युअस. मग प्रेझेंट कंटिन्युअस मध्ये काय येणार? तुम्हाला वर्ब लिहायचा आहे. तुम्ही वर्ब लिहायला कसे विसरता? मेन वर्ब नाहीच आहे तुझ्या सेंटेन्स मध्ये. यू कॅन से ही इज प्लेइंग गुड. ओके, देन प्रथमेश सेज आय एम लर्निंग. टेन्सेसची स्पेलिंग चुकली प्रथमेश. धीरज सेज आय एम गोइंग टू गार्डन नाऊ. व्हेरी गुड. ओके, गुड. So should we go? No, Nidhi, no. He is good in playing is the again a different type of sentence. आपल्याला जो फॉर्म्युला इथे लिहिलेला आहे तो वापरूनच सेंटेन्स बनवायचा आहे. ओके, द कॅट अँड माउस इज रनिंग. ओके, आता बघा पुढे पास्ट कंटिन्युअसला जाऊया. पास्ट कंटिन्युअस मध्ये काय आहे? हे जे एम इज आर आपण इथे लिहिलं होतं, या एम इज आरचं काय होतं? एम आणि इज चा होतो वॉज आणि आर चा होतो वेअर. ओके, एम का क्या होता है? वॉज होता है, और सॉरी एम और इज का वॉज होता है और आर का वेयर होता है. ओके, तो बाकी सभी फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला सेम है. सब्जेक्ट वॉज और वेयर यूज करना है और वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना है. मेनका मैडम ने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आई एम प्लेइंग इन द गार्डन नाउ. यस, इट इज करेक्ट मैम. ओके, सो अभी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल देखते हैं. I was playing Marshmallow and Halsey last night. अभी last night, कल रात मैंने
मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी, ये अगर आपको बोलना है तो यू कैन से पास्ट कंटिन्यूअस. ओके, योर सेंटेंस मस्ट बी इन पास्ट कंटिन्यूअस. तो यहाँ पे देखिए वॉज लिखा है आई के साथ और प्लेइंग लिखा है. ओके, तो वेयर कब आएगा? वेयर आएगा वी, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको, यू के साथ भी वी आएगा. यू, वी और दे के साथ आएगा वेयर. जैसे ऊपर यू, वी और दे के साथ क्या आया था? आर. वैसे यहाँ पे उसका पास्ट जो है आर का वेयर है, इसीलिए यहाँ पे भी यू और वी एंड दे इनके साथ वेयर आएगा. तो अगर यहाँ पे आई वॉज प्लेइंग मार्शमेलो लिखा है तो यू के साथ यू वेर प्लेइंग मार्शमेलो, वी वेर प्लेइंग, दे वेर प्लेइंग, ऐसे बोलेंगे. ठीक है, तो अभी मुझे बताइए आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस को लेके सेंटेंसेस लिखिए जल्दी जल्दी. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव टू कंप्लीट मेनी थिंग्स. ओके, कादम्बरी सेज वी वेर ईटिंग अ मील. Ayush says you were playing basketball. Very nice, Ayush and Kadambari. Parth says I was playing the game last night. Very good. Deepika says I was reading the novel. Okay, good. Aditi says children were playing in the garden. Very good. Very good. Dhanashri says we were playing volleyball after class. Very good. Prathamesh, he was playing game 2 hours ago. Very good, Prathamesh. 2 hours आएगा. Okay. Dheeraj says the sun was shining every day that summer. Very good. देखिए धीरज ने रिसेम्बलेंस भी दे दिया आगे. Okay, good. Swam says I was going to the club. Okay. Sakshi, I was playing in the garden. Nidhi says I was coming yesterday. निधी इथे तू ऍडिशन करू शकते. आय वॉज कमिंग फ्रॉम सम प्लेस, म्हणजे काहीतरी जागा टाकून तू येस्टरडे असं ऍड करू शकते. ओके, म्हणजे ते सेंटेन्स जरा कम्प्लीट वाटेल. चिन्मयी सेज वी वेर रायटिंग अ लेटर. गुड चिन्मयी. देन अगेन धनुश्री तुझं वाक्य वाचलं मी. धीरज सेज ऍट 6 o'clock आय वॉज इटिंग डिनर. ओके, गुड. एवढ्या लवकर? Menuka madam says I was reading a book in library. Very good, very good. No, sorry is not required. Okay, thank you. अभी इसका लास्ट. ओके, निधि ने करेक्ट कर दिया सेंटेंस. आई वॉज कमिंग फ्रॉम ताजमहल लास्ट नाइट. वेरी गुड निधि. अभी आपका अगला जो लास्ट पार्ट है इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का सिंपल टाइप देख लिया. अभी प्रेजेंट पास्ट का कंटिन्यूअस टाइप देख लिया. अभी फ्यूचर का कंटिन्यूअस टाइप देखेंगे. तो यहाँ पे आज टेंस का रिवीजन यहाँ पे खत्म होगा और फिर बाकी जो आपका परफेक्ट और इम्परफेक्ट बाकी है वो कुछ अगले क्लास में हम लोग. तो अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं देखिए, सेम है. सब्जेक्ट है यहाँ पे. अभी यहाँ पे ये जो सिंपल फ्यूचर में विल और शैल हमने लिखा था, वहां पे क्या जोड़ दिया देखिए, बी. विल बी और शैल बी और वर्ब के साथ अगेन आईएनजी. ये जो आईएनजी है वो कंटिन्यूअस टाइप जो है आपका टेंस का, ठीक है, उसके लिए कंपलसरी है, ये ध्यान में रखना है. तो अभी देखिए इसका एक सेंटेंस दिया है, आई विल बी प्लेइंग माई केमिकल रोमांस आफ्टर आई डाउनलोड माई फेवरेट एल्बम. ओके, तो ये मैं करने वाला हूं, मी हे करत असेन, ये मैं कर रहा हूंगा. ये जो है ऐसे सेंटेंसेस हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिखते हैं. जैसे आई विल बी रीडिंग, अ लेसन आफ्टर दिस क्लास. मतलब ये क्लास होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं एक कोई तो लेसन पढ़ रहा हूँगा. ओके, तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस.
आप फ्यूचर में कोई चीज कर रहे हो, कर रहे होंगे, इसके बारे में जब आपको बताना है तो यू हैव टू यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, करेक्ट। तो इसका कुछ टाइप सेंटेंसेस लिखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का, जैसे मैंने आपको एक और सेंटेंस बता भी दिया। यस, so she'll be writing a lot of papers for her classes next year. Okay, good. So again पेपर्स के बारे में, पेपर्स को हम लोग एग्जाम्स लिखना है वहां पे। ओके, दीपिका सेज आई विल बी गोइंग टू होम टुमारो, वेरी गुड। पार्थ सेज आई विल, पार्थ बी यूज करना है विल के साथ। पार्थ, धीरज, आपने बी यूज नहीं किया है। आई विल बी प्लेइंग द गेम टुमारो, आई विल। धीरज यू हैव रिटन द, अगेन आपने फ्यूचर सिंपल, सिंपल के टाइप में लिखा है। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा है। आयुष सेज यू विल बी रीडिंग द बुक, वेरी गुड आयुष। Kadambari says Chandani will be dancing on the stage. Very good. Menaka madam says I will be sharing my tiffin with my friends. Very good. Sakshi says I will be लिखना है साक्षी। Som says will you be waiting for me? Very good. I will be playing the game tomorrow. Okay, पार्थ ने करेक्ट कर दिया, धीरज ने भी करेक्ट कर दिया। I will be writing articles on different topics. Very good. Then Dhanashri says she will be cooking at this time. वेरी गुड, मतलब इस टाइम पे वो कल कुक कर रही होगी, तो यू कैन ऐड टुमारो ऑल्सो। ओके धनुश्री। देन अदिति सेज द मैन विल बी सेलिंग द फ्रूट्स, वेरी गुड अदिति। धीरज सेज दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड, वेरी नाइस। So here we are concluding with first revision of tense, that is simple type and continuous type. Okay, अभी चलते हैं आगे। अभी ये रिवीजन तो हो गई, आपको समझ में भी आया क्या क्या था। तो अभी आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है आपको, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द टेंसेस यूज्ड इन देम। आपको ये सेंटेंस रीड करना है और उस टेंस का टाइप बताना है। ओके, तो अभी कादम्बरी स्विच ऑन योर माइक, रीड द सेंटेंस और उसका टाइप भी बताओ। Yes, ma'am. My sister lives in Mumbai. Simple present tense. वेरी गुड, करेक्ट, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि लीव्स लिखा है। ओके, मतलब जो माय सिस्टर इसमें सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लिखा है, लीव्स। तो लीव्स जो है वो क्या है आपका, सिंपल फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, तो इट इज करेक्ट आंसर। बाकी लोग जैसे सोहम ने लिखा वैसे आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड है, अभी सोहम ही पढ़ेंगे। चलो सोहम, स्विच ऑन योर माइक। सोहम, यू हैव टू रीड द सेंटेंस। रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, जल्दी करो। 10th स्टैंडर्ड का क्लास है अभी 8 o'clock, आप लोग इतना लेट करोगे नहीं चलेगा। हु विल टेल? यस आदिति। Hello. हाँ बोला, Hello. रीड द सेंटेंस The फर्स्ट। girl यस was अदिति। carrying a basket. The girl was carrying a basket full of flowers on her head. हाँ, सांगा काय आहे, टाइप ऑफ Past सेंटेंस। continuous. Past यस continuous. करेक्ट, वेरी वेरी गुड, करेक्ट। सो बाकी जिन जिन लोगों ने
इट इज कंटिन्यूअस पास्ट टेंस लिखा, किसी ने नहीं लिखा। अनुज उसमें वॉज यूज किया है, तो ये पास्ट टेंस है, और आईएनजी है, तो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है, इट इज नॉट प्रेजेंट टेंस। ओके, सो अदिति इट वाज गुड। देन थर्ड जो है वो कौन पढ़ेगा? अनिकेत, यस। The boy are playing cricket. बॉयज, आपको उसका टाइप भी बताना है। Perfect tense. Present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट तो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, तो दीपिका विल टेल द टाइप। दीपिका। Present continuous tense. यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बिकॉज बॉयज के साथ आर लिखा है और प्ले के साथ आईएनजी लिखा है, तो इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। करेक्ट। नाउ द फोर्थ वन, हु विल रीड द फोर्थ वन? यस दीपिका। I had a strange dream yesterday. Past simple tense. यस, इट इज सिंपल पास्ट टेंस। अभी आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो हैड लिखा है, बट ये हैव का पास्ट टेंस है, ठीक है? तो हैव का हैड हुआ है, तो इसीलिए ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। वेरी गुड दीपिका। देन द नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ेगा? फिफ्थ वन। सिर्फ आदिति, दीपिका, ये लोग ही कर रहे हैं, कादम्बरी कर रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यस कादम्बरी। Yes, ma'am. My father drinks coffee in the morning. Simple present tense. वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिकॉज यहाँ पे ड्रिंक के साथ एस जोड़ा गया है। माय फादर ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, तो ये उनकी आदत है। ओके, और हम लोग ने ये पढ़ा था कि जो भी आपकी रेगुलर आदत है उसके बारे में जब बात करते हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। वेरी गुड कादम्बरी। द नेक्स्ट सेंटेंस, बाकी लोग चलो पढ़ो फटाफट। निधि, यस। Yes, ma'am. I will meet you at the library. Future simple tense. फिर से टाइप बताओ। Future simple tense. Yes, it is simple future tense. I will meet you at the library. Will use किया है, और आपके जो भी एक्शन वर्ड है या वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म है। धीरज, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। Once a week, he washes his car. हाँ, टाइप। चलो, किसको टाइप आता है? रेज योर हैंड। अभी जो धीरज ने सेंटेंस पढ़ा उसका टाइप किसको पता है? अदिति। Simple present tense. यस, बिकॉज यहाँ पे भी देखिए, आपको ये आइडेंटिफाई करने आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या लिखा है? वॉशेस, सॉरी, मतलब आप ये वॉशेस, ओके, ईएस जो लगा है, ये कंडीशन सिर्फ कब होगी? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसके ये कुछ की वर्ड से इसको ध्यान में रखना है, ओके? और आपको पढ़ना है, इसको याद ही करना है। फॉर्मूला जैसे आप लोग मैथ्स के फॉर्मूले लर्न करते हो, वैसे ही आपको ग्रामर में जो टेंस है उसके फॉर्मूले लर्न करने हैं कंपलसरी। ओके, देन द नेक्स्ट 8 नंबर कौन पढ़ेगा? बाकी लोगों को भी चांस देते हैं। चलो मैं ही बोलती हूँ, बाकी लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना। Excuse me, ma'am. Yes, यस ma'am. Can you excuse me, ma'am? Just बोलिए। my daughter is adding here. यस My यस, daughter is adding here, ma'am. you can Yes, ma'am. ask her. She want to read. Here. Yeah.
Please, See, now please. she want to read that question number 8. Question number Yes. 8, ma'am. हाँ, you read them. You read बोलिए them. बोलिए. Read out this. Rahul enjoys clay modeling. Simple present tense. वेरी गुड, करेक्ट, वेरी नाइस. देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है राहुल और आपका जो हेल्प सॉरी मेन वर्ब है एंजॉय. एंजॉय के साथ क्या लगाया है यहाँ पे? एस. राहुल एंजॉयज क्ले मॉडलिंग. राहुल को क्ले मॉडलिंग करना पसंद है. तो ये एक रेगुलर सेंटेंस है, उसकी आदत है, उसको ये अच्छा लगता है, उसकी हॉबी है. तो उसके बारे में जब भी बात करेंगे तो वो भी क्या होगा आपका? सिंपल प्रेजेंट टेंस. वेरी नाइस. अभी नेक्स्ट पार्थ पढ़ो, 9 नंबर. The boy helped the man to cross the road. हेल्पेड नहीं बोलते, हेल्प बोलते हैं. डी साइलेंट रहेगा यहाँ पे. द बॉय हेल्प द मैन टू क्रॉस द रोड. ओके, तो व्हाट इज द टाइप? चलो इसका टाइप कौन बताएगा? Ma'am, past tense. यस, करेक्ट past tense. करेक्ट. इट इज सिंपल पास्ट टेंस. ओके, क्योंकि यहाँ पे हेल्प लिखा है. तो अगेन मेन वर्ब जो है आपका हेल्प, उसको ईडी लगाया है, मतलब सेकेंड फॉर्म लिखा है. द बॉय हेल्प द मैन टू क्रॉस द रोड. ओके, तो इट इज सिंपल पास्ट टेंस. अभी जो लास्ट वन है, लास्ट वन पढ़ेंगे. आदित्य एंड कादम्बरी प्लीज वेट, बिकॉज ये बाकी लोग कुछ पढ़ते नहीं है, उनको थोड़ा बोलना पड़ेगा. ओके, देखते हैं और कौन कौन है. प्रथमेश, प्रथमेश स्विच ऑन योर माइक. अनघा, यस अनुज. We will not tolerate this injustice. टाइप नो. धीरज, यू आर रॉन्ग. अनुज, टेल द टाइप. आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, Simple टाइप भी future बताना tense. है. सिंपल Future tense. यस, करेक्ट. ओके, देखिए यहाँ पे विल है और आपका जो एक्शन वर्ड है या वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में है. सिर्फ टेंस यहाँ पे सेंटेंस में मैंने नॉट डाला है, तो नॉट बस निगेशन दिखा रहा है. ठीक है, कि हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन उसका टाइप चेंज नहीं होता है नॉट की वजह से. ओके, वो हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस ही रहेगा. ये ध्यान में रखना है सब लोग ने. ओके, तो अभी जाते हैं नेक्स्ट. ये आंसर्स थे, आपने अभी जो भी बताए वही. ओके, अभी जाते हैं टेंस की ही एक और एक है एक्सरसाइज. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चेंज द टेंसेस एज पर द गिवन डायरेक्शन. अभी मैं पढ़ती हूँ, आपको आंसर लिखना है चैट बॉक्स में. आपके सामने ही है सब, क्या करना है वो भी लिखा हुआ है. ठीक है, देखिए. आई विल बी राइटिंग माई एग्जाम दिस टाइम टुमारो. अभी मैं बताती हूँ इसका. आई विल बी राइटिंग मतलब ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है सेंटेंस. उसको आपको क्या करना है? आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है. ये आपका होमवर्क भी रहेगा, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए सब लोग, आपको एज अ होमवर्क करना है इसको. ओके, अभी आंसर्स लिखना शुरू कर दीजिए.
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसको चेंज करना है सिर्फ, विल बी को। ओके, आई के साथ क्या आएगा? पास्ट में आई के साथ आएगा was. यस करेक्ट मैत्रेया। आई वॉज राइटिंग माई एग्जाम दिस टाइम, अभी टुमारो का होगा यस्टरडे, क्योंकि हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी गुड दीपिका। ओके, यस करेक्ट अनुज, वॉज होगा, विल का वॉज होगा। आई वॉज राइटिंग माई एग्जाम यस्टरडे या दिस टाइम यस्टरडे। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। He will be waiting for us. He will be waiting for us. अगेन ये क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है, उसको आपको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे भी क्या चेंज करना है आपको? विल भी चेंज करना है। क्या लिखोगे? यस, आदिति, मैत्रेय एंड दीपिका, यू ऑल आर करेक्ट। वहां पे हम लोग इज लिखेंगे। ही इज वेटिंग फॉर अस। वेरी गुड, वेरी गुड। देन द थर्ड वन, आई नो दिस। ओके, आई नो दिस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको आपको क्या करना है? पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, सिंपल पास्ट। तो नो का क्या होगा? वेरी गुड, कादम्बरी, प्रथमेश, धीरज, दीपिका, स्नेह, अरे सबको आता है अभी तो। नो का होगा न्यू। आई न्यू दिस। यू ऑल आर करेक्ट, वेरी नाइस। द फोर्थ वन, he wanted to know more about the job. Okay, he wanted to know more about the job. ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है, इसको आपको चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट में। करिए, क्या होगा? वांटेड का क्या होगा? यस, सिर्फ वांट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे वांट्स। ओके, एस, क्योंकि ही आया ना यहाँ पे, आपका वर्ब सॉरी सब्जेक्ट ही है। तो हमने पढ़ा है कि ही शी इट के साथ आपका जो भी वर्ब है उसको एस या ई एस लिखेंगे। तो ही वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट द जॉब। ये जिन्होंने जिन्होंने लिखा है वो सब करेक्ट है। ओके, आगे देखिए नंबर 5, आई एम लिविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो। ओके, तो ये क्या है? आई एम लिविंग, ये क्या है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अभी आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस करना है। तो क्या होगा? एम को क्या कन्वर्ट करना है आपको? सिर्फ आई विल बी। करेक्ट मेनका मैडम, कादम्बरी। विल नहीं आएगा, विल बी आएगा, बी आएगा साथ में। पार्थ, प्रथमेश, यस। ओके, यस आदिति, यू कैन राइट आई शैल बी लिविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो। करेक्ट। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी यूज होता है, ये भूलना नहीं है, सिर्फ विल नहीं लिखेंगे। ओके, देन नंबर 6, she hadn't thought about that. ओके, अभी यहाँ पे ये परफेक्ट का सेंटेंस आ गया है, तो आपको सिर्फ सिंपल पास्ट में उसको कन्वर्ट करना है। क्या करोगे? वेरी गुड धीरज, शी डिडंट थिंक अबाउट दैट। वेरी नाइस। ओके, हैड की जगह पे आएगा डिड, क्योंकि सिंपल लिखना है आपको। डिड नॉट और थॉट का क्या होगा? फर्स्ट वर्ब, first form of the verb, that is think. Very good. Number 7, he will not accept this proposal. ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है, उसको सिंपल पास्ट में करना है। करिए, विल की जगह पे क्या लिखेंगे? डज नॉट लिखेंगे। वेरी स्मार्ट दीपिका, वेरी नाइस। he does not accept this proposal. Yes, correct, very good. Number 8, she will not tolerate this injustice.
She will not tolerate this injustice. देखिए, उसको क्या करना है, सिंपल पास्ट में करना है. विल नॉट का क्या है, विल के जगह पे क्या आएगा? नो, सिंपल पास्ट है. डिड नॉट आएगा. शी डिड नॉट टॉलरेट दिस, या दिस का दैट कर सकते हैं आप, दैट इनजस्टिस. ओके. और द लास्ट वन है शी डिड नॉट वांट टू गो. ये क्या है? ये सिंपल पास्ट टेंस है. इसको आपको सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है. धीरज, आपने तो उसका एक्टिव पैसिव कर दिया, वॉइस ही चेंज कर दिया. पार्थ ने भी वही किया. लास्ट लास्ट. यस, शी डज नॉट वांट टू गो. वेरी गुड कादम्बरी, दीपिका, आयुष, वेरी नाइस. ओके. तो अभी 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको क्लास लीव करना है, क्योंकि उनका 8 PM का हिस्ट्री का क्लास है. So 10th standard students can leave the class, please. Okay, yes. Bye bye. Now, इवन हम लोग भी आज यहीं पे रुकेंगे. ये जो आप सबने पढ़ा है, इट इज वेरी सिंपल, बट आपको क्या करना है? आपको ये जो फॉर्मूलेज है, आपको ये पढ़ाए भी गए हैं, आपको इनको याद रखना है. फॉर्मूला के, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली टाइप ऑफ द सेंटेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो, और जब आइडेंटिफिकेशन आ गया तो उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो. ठीक है. तो सब लोगों ने ये मैंने जो बोला था, एक ये वाला भी कर लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. ये आपका होमवर्क रहेगा. हो गया तो यस लिखो, या डन लिखो. सब लोग कर लो जल्दी जल्दी. गुड. अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. एक ये आपका होमवर्क है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग. और इसका भी हो जाने के बाद डन लिखिए. Okay, thank you so much. So now you all can leave the class. Bye bye. Bye, ma'am. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye everyone. Bye, Miss. Bye bye Thank you, bye. teacher. Yes, good night. Thank you. Thank you, Kadambari. Bye bye. Bye, madam. Thank you.